Hello dear students, in this video lecture we will learn how to install Java, and after that we also learn the process of compiling and running a Java program. Now first of all you have to install Java in your system. You can search JDK according to your own operating system. Now for example, if you are using Windows 10 and you already know that Windows 10 is a 64-bit operating system, then you have to Google JDK for Windows 10 64-bit. Because I am using Windows 7 64-bit, that's why I am searching JDK for Windows 7 64-bit. JDK is a Java development kit. It is a name of the software required to install Java in your system. Now just Google it, because Oracle is Java is a product of Oracle. You just click the first link, you click on first link, and here you can find Java standard download, standard edition download, because the standard edition is freely available, right? And you can download it from here, JDK download, right? After downloading you can get such kind of installable file, right? I will show you. After installation you get such kind of installable application. Now just double click on it. After double click, I will show you, just double click on it. It will ask for your permission. Now it will take a few seconds. Now you can get now installation wizard will appear. You just follow the steps, just click on next. Here you find out development tools, all the tools required to run and to compile and to run program, right? The source code related features and Java runtime environment. You have to install all these three things. You just double click on it, and please ensure that Java आपके सिस्टम में कहाँ इंस्टॉल हो रही है. You can see here in my system Java is installed at see here C program files. Then it automatically create a Java folder. Under Java folder it will create a JDK 1.8.144, right? You just you just click on next and wait for few minutes. It will install Java in your system. It depends upon the speed of the net. And after installation you have to check the either the your program is running or not. You have to create a single program. You have to create a program in Notepad and save it with .java extension and try to compile and run it. I will show you after this installation how to create a program, how to compile a program, and how to run a program at command prompt. Just wait few seconds. Now here it will give you option to change the folder, right? But it will basically it will ask to install Java runtime environment on different folder, right? I advise you just install it in their default folder. Just click on install at their default folder suggested by the installation wizard. Now and you can see here that
3 billion devices are running Java directly or indirectly. Most of the automatic or remote control devices using Java, or the web services you are using directly or indirectly using Java, right? I already explained all these things in the overview जब मैंने आपको Java का overview दिया था, right? Just wait few seconds. You have to wait some okay, now almost installation is done. Okay, now you just close this window. Now Java is installed in your in my system. I just check it, either it is working or not. Click on start button and type here CMD, that is for command line, and here I just check the Java compiler is working or not, right? Now you can type here Java C. If Java C command is working, आप देख सकते हैं Java C command work कर रही है. Now that means Java is successfully installed in my system. Now if you find some difficulty, if your Java C command is not running at command prompt, in that case आपको कुछ इसका path set करना पड़ेगा. Now first of all you just check out that Java install कहाँ हुआ है, right? You can find out here in C drive. There is a one folder program files. Under program files you can find out Java folder, and in Java folder there are two subfolder, JDK and JRE. You have to click on JDK 1.8. Under JDK 1.8 you can find out some more subfolders. Here you click bin folder, because bin folder having all the commands required to compile and to run your Java program. Here you can find two important commands. I will show you. One is Java command, another is Java C. Java C is a name of compiler and Java is a interpreter. It convert bytecode into machine code. So you have to use these two commands. You just right click on it, right? Or even you can copy the path of that folder here. Here is a path, right? Just copy that path. Click on copy, right? ये आपको तब करना है अगर आपका कंपाइलर वर्क नहीं कर रहा. तो इन दैट केस नेक्स्ट स्टेप, माई कंप्यूटर पे जाइए. माई कंप्यूटर में जाके राइट क्लिक, select properties, and under properties you can find out advanced system settings, and here you can find out, in this dialog box you can find out environmental variables. Under environmental variables you have to set the path of the bin folder, right? There are basically two different kind of environmental variables here. One is user variable, another is system variable. So this is user specific. That means अगर आपने admin से login किया, it will work only in admin, right? अगर आप admin से switch over करते हैं किसी और user में, तो it will not work. और अगर आप system variable में path set करते हैं, तो now you are free to switch from one user to another user, और ये path हर users में काम करेगा, right? तो I will suggest you have to set system variable. Here you can find path variable, right? Just click on edit. You have to ensure that either your path is set or not. Here you can see in my system path is already set. Here is Java path like this. If the path is not set, आपको इस पाथ के आगे जाके सेमीकोलन लगाना है, और जो भी आपने पाथ कॉपी किया उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना, और यहाँ पर भी सेमीकोलन लगाना है. सेमीकोलन लगाना मैंडेटरी है. रीजन इज दैट
क्योंकि अगर आप सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो ये पिछला पाथ जो भी होगा उसको हटा देगा और जो दूसरी एप्लीकेशंस हैं वो रन होना बंद हो जाएंगी, राइट। तो मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं इसको अभी सेव नहीं कर रहा, राइट। तो आपको जस्ट यही काम करना है, ओके पे क्लिक करना है, राइट, और यहाँ पर भी ओके पे क्लिक करके इस डायलॉग बॉक्स को बंद करना है। गॉट इट। तो आपके सिस्टम में भी अब जाके आपको दोबारा टेस्ट करना है कमांड प्रॉम्प्ट पे, राइट। अगर कमांड प्रॉम्प्ट आपको पहले एग्जिट करना है, ये एनवायरमेंटल वेरिएबल सेट करने के बाद दोबारा से स्टार्ट पे क्लिक करके देन क्लिक अगेन टाइप cmd एंड अगेन टाइप जावा सी, सॉरी जावा सी, तो इट इज एब्सोल्युटली वर्किंग, राइट। तो नाउ अब हम नेक्स्ट स्टेप है हाउ टू राइट ए प्रोग्राम एंड हाउ टू कंपाइल इट एंड रन इट, राइट। तो इन दैट के मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले एक फोल्डर बनाएं, लाइक फॉर एग्जांपल डी ड्राइव में मैं एक फोल्डर बना रहा हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने फोल्डर बनाया अपने नाम से, और फॉर एग्जांपल ये मैंने अपने नाम से एक फोल्डर बनाया महेश, राइट। आप अपने केस में क्या करेंगे, आप अपने नाम और अपने रोल नंबर के नाम से एक फोल्डर बनाएंगे, राइट। गॉट इट। तो यहाँ पर आप एक मैंने फोल्डर बना दिया, इस फोल्डर के अंदर जाके मैं अपना जावा का प्रोग्राम सेव करूंगा। तो आपको सिंपली एक नोटपैड ओपन करना है। इनिशियली हम नोटपैड से स्टार्ट करते हैं, देन उसके बाद हम इसको किसी पर्टिकुलर एक आईडीई में जाके एक्लिप्स में जाके काम करेंगे। नाउ मैं जावा का एक सिंपल प्रोग्राम अभी टाइप कर रहा हूँ, उसको सेव करके रन करके दिखाता हूँ। बिकॉज जावा इज ए प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एवरी स्टेटमेंट मस्ट बी रिटन इन क्लास। तो प्रोग्राम का स्टार्ट ही क्लास से होगा। फॉर एग्जाम्पल क्लास, और मैंने प्रोग्राम का क्लास का नाम रखा सैम्पल, राइट। तो यहाँ पर इवन आपको जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जावा का होता है वो मेन मेथड से फंक्शन से स्टार्ट होता है, एंड मेन फंक्शन इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ क्लास, राइट। तो यहाँ पर मेन फंक्शन का सिंटेक्स ये होता है पब्लिक स्टैटिक वाइड, इसकी रिटर्न टाइप है मेन, और इसके अंदर आपको एक ये स्ट्रिंग ऐसे लिखना है, राइट, लाइक दिस स्ट्रिंग एरे लेना है। अभी इसको मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक स्टैटिक वाइड एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ये स्ट्रिंग एरे, राइट। ओके, नाउ यहाँ पर इसका ब्लॉक स्टार्ट कीजिए, राइट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट, एंड हेयर आई जस्ट टाइप, इसमें आउटपुट प्रिंट करने के लिए आपको ये लाइन लिखनी है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। इनिशियली इट विल लुक लाइक कंफ्यूजिंग बट डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग with example, right, with justification. Now मैंने यहाँ टाइप किया वेलकम इन फर्स्ट जावा प्रोग्राम, राइट, यहाँ सेमीकोलन लगाना है, सेव इट, राइट। अब जो क्लास का नाम है अभी इनिशियली आप उसको उसी के नाम से सेव करेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने डी ड्राइव के अंदर महेश 01 फोल्डर के अंदर मैं इसको सेव कर रहा हूँ, राइट। और यहाँ पर सेव करने के लिए मैंने लिखा है इसका नाम sample dot java, right, got it, and save it. Now here you can see there is a program sample. अब इसको रन करना है तो आप यहाँ पर cmd में गए कमांड प्रॉम्प्ट पे, ओके, राइट, यहाँ डी ड्राइव में जाएंगे आप, ये देखिए डी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर है महेश 01 जो मैंने अभी जस्ट क्रिएट किया है, एंड हियर यू कैन फाइंड आउट वन फाइल दैट इज sample.java. तो अब इस प्रोग्राम को रन कैसे करना है, जस्ट टाइप, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंपाइल सोर्स कोड, राइट। तो कंपाइल करने के लिए कमांड का नाम है जावा सी, इट इज द नेम ऑफ कंपाइलर, जावा सी, देन प्रोग्राम नेम विद देयर एक्सटेंशन, राइट, जस्ट प्रेस एंटर। अगर इसके अंदर कोई एरर नहीं है तो इट विल क्रिएट ए बाइट कोड ऑफ दैट सोर्स कोड, राइट, बाइट कोड ऑफ दैट फाइल। अब अगर आप यहाँ एक लिस्ट करके देखें तो आपको यहाँ दो फाइल्स मिलेंगी, sample.java जो हमने अभी प्रोग्राम जिसमें सेव किया था, इट ऑटोमेटिकली क्रिएट ए डॉट क्लास फाइल आफ्टर कंपाइलेशन, दैट डॉट क्लास फाइल हैविंग बाइट कोड, एंड बाइट कोड इज नॉट ए मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड। अब प्रोग्राम तो तभी रन होगा जब वो मशीन कोड में कन्वर्ट होगा, इन दैट केस यू हैव टू कन्वर्ट बाइट कोड इनटू मशीन कोड, एंड सैंपल डॉट क्लास फाइल हैविंग दैट बाइट कोड। अब बाइट कोड को रन करने के लिए क्या करना है, इंटरप्रेटर इज रिक्वायर्ड। तो जावा के इंटरप्रेटर के लिए कमांड है जावा, राइट, जावा, देन जस्ट क्लास नेम, आई अगेन रिपीट,
class name. In our example, class name and program name both are same, right? Please note down, after Java you have to write a class name having main function, having main method, right? Okay, so now I just type class name sample, because in our program there is only one class and in that class there is a main function, and press enter. Now it will display welcome in first Java program. In that way you can create a Java program, compile it, and you can run it. Got it? Right? Okay. Now after that, if you want to run that program in IDE, that means if you are not comfortable with Notepad, right, you can even compile and run program by using IDE. Lots of IDEs are already available or freely available. You can use anything, but the famous IDE for Java coding or even Python coding or for C++, there is a very famous IDE that is called Eclipse, right? So I will suggest you, even you can also even you have to also install Eclipse, right? तो just again Google पे जाइए, टाइप कीजिए Eclipse, right, and उसको डाउनलोड कर लीजिए. गूगल पे लिखिए Eclipse, Eclipse डाउनलोड. तो यहाँ से आप इस लिंक से जाके Eclipse डाउनलोड कर सकते हैं, या Eclipse IDE फॉर जावा स्टैंडर्ड एडिशन, ये एंटरप्राइज एडिशन का है. आई विल सजेस्ट you just you have to install Eclipse IDE for standard edition, right? तो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है. You can see here in my system Eclipse is already installed. You can see here you can find Eclipse file like this, installable file here, right? Got it? Now आप इसको just क्लिक कीजिए. इट विल आस्क फॉर परमिशन. It will also take some time. Now see here, it will take some few seconds. First time it will take time. After installation you can easily it will even run in a second, in 1 or 2 seconds. Now here in first screen you can see Eclipse. You required Eclipse IDE for Java developer, for Java Enterprise Edition developer, for C++, for web designing, or for PHP, or even you can use also for Python, right? So Java Eclipse IDE is a multi-purpose IDE. So you have to click on this option, and after that just follow the instruction of wizard. Just click on next, and after the end of that you have to click on finish, right? I already installed Eclipse in my system. I will show you. After installation, when the Eclipse installation is completed, then you can find Eclipse here like that. In my system, here Eclipse is already installed. You have to click on it, और ये इंश्योर कर लेना Eclipse आप तभी इंस्टॉल करेंगे जब जावा ऑलरेडी इंस्टॉल होगी. गॉट इट? तो पहले आपको जावा इंस्टॉल करना है, दैट मीन्स JDK इंस्टॉल करना है, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू इंस्टॉल Eclipse, राइट? नाउ यहाँ पर सबसे पहले एक वर्क स्पेस लेना है, बिकॉज यू आर वर्किंग इन IDE, राइट? वर्क स्पेस क्या होता है? एक ऐसा कॉमन स्पेस होता है जिसमें आप जावा का प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं, राइट? C++ का प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं, पाइथन का प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं, जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं. तो वर्क प्लेस इज ए कॉमन प्लेस. लाइक इफ यू आर वर्किंग इन एनी कंपनी एंड देयर इज ए वन प्लेस दैट इज कॉल्ड वर्क स्पेस. Suppose your
company name is your workspace, and company is running suppose 10 different projects, and under one workspace, right, if company is running 10 different project now, तो वहाँ उसके अंदर हमें 10 different project के लिए 10 different folders बनाने पड़ेंगे, right? तो there is only one common place that is called workspace, right? तो आपके केस में क्या होगा? For example, BTech CSC 4 SEM, it is your workspace, right? उसके अंदर आप एक प्रोजेक्ट बनाएंगे अपने सेक्शन का या अपने नाम रोल नंबर का, राइट? या फॉर एग्जांपल आप के सेक्शन के स्टूडेंट हैं या आई के हैं या जे के हैं या ए सेक्शन के हैं, आपको सिंपली क्या करना है, आप अपने सेक्शन के नाम से एक वर्क स्पेस बनाइए। लाइक फॉर एग्जांपल, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मैं यहाँ पर एक वर्क स्पेस बनाता हूँ डी ड्राइव के अंदर। डी ड्राइव के अंदर मैं एक वर्क स्पेस बनाता हूँ, मेक ए न्यू फोल्डर, राइट? इट इज अ वन टाइम एक्सरसाइज। यहाँ पर आपने एक फोल्डर बनाया CSE4 फॉर एग्जाम्पल के, मैं के सेक्शन के लिए बनाता हूँ, राइट? ऐसी जो ए में काम कर ए के स्टूडेंट ए वाला बनाएंगे, बी के स्टूडेंट बी वाला बनाएंगे, सी के स्टूडेंट सी वाला, राइट? क्लिक ऑन ओके, राइट? तो आप यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे। अभी मैं इसको क्लिक नहीं करना, अदरवाइज आप यहाँ पर एक चेकबॉक्स दिया हुआ है, यूज दिस द डिफॉल्ट एंड डू नॉट आस्क अगेन। तो जब आप इस पे क्लिक कर लेंगे आपके अपने सिस्टम पर, नेक्स्ट टाइम वो आपसे ये वर्क स्पेस नहीं पूछेगा, ऑटोमेटिकली आपका वर्क स्पेस एज्यूम कर लेगा। एंड क्लिक ऑन लॉन्च। Initially it will take a few seconds. Have patience, it will take few seconds. Now here you can see a welcome window, right? Just close that welcome window, right? Now the next step is click on file, click on new, and under new you have to create a one Java project, right? तो इस केस में आपका वर्क स्पेस क्या था? CS4 के, राइट? ए सेक्शन वाले CS4 ए बनाएंगे, बी सेक्शन वाले CS4 बी बनाएंगे वर्क स्पेस इनिशियली, जब पहली बार आप एक्लिप्स रन करेंगे, राइट? नेक्स्ट टाइम आपको ये काम नहीं करना। देन नेक्स्ट स्टेप आपका होगा आपको जावा प्रोजेक्ट। अब सपोज के सेक्शन में नियर अबाउट 50 स्टूडेंट्स हैं, राइट? तो हर स्टूडेंट को अपना अपना जावा प्रोजेक्ट बनाया है अपने नाम और रोल नंबर के नाम से, राइट? तो यहाँ अगर आपको जावा प्रोजेक्ट की ऑप्शन कई बार अगर नहीं दिखाई दे तो आप अदर्स में, इसमें इस ड्रॉप डाउन मेनू में अदर्स भी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी जाके आप ये जावा आएगा, जावा के अंदर ये जावा प्रोजेक्ट आएगा, आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, राइट? गॉट इट? ओके। नाउ फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर स्टूडेंट हूँ, सपोज के सेक्शन का, मेरा रोल नंबर 1 है, तो मैं यहाँ पर एक फोल्डर बनाऊंगा महेश 01 के नाम से, राइट? तो आप देख रहे हैं, अगर आप यहाँ नोट करें, यहाँ पर एक आपको ऑटोमेटिकली एक पाथ बनता हुआ नजर आएगा। डी ड्राइव के अंदर जो वर्क स्पेस था वो आपका फोल्डर है, उसके अंदर एक प्रोजेक्ट का फोल्डर बन गया महेश 01, राइट? गॉट इट? नाउ नेक्स्ट, आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आपको इस टाइप का एक विंडो दिखाई देगा। इस विंडो के अंदर देखिए ऑटोमेटिकली ये महेश फोल्डर के अंदर, महेश 01 के अंदर एक SRC फोल्डर बन गया, इसमें आपके सोर्स कोड रहेंगे। एंड यहां पर देखिए, यहां पर एक इस पे क्लिक कर दे, अलो आउटपुट फोल्डर फॉर सोर्स फोल्डर, ओके, इसको टिक नहीं करना। इसमें एक पिन फोल्डर बनेगा, तो सोर्स कोड आपके रहेंगे SRC फोल्डर में यहां पर, और आफ्टर कंपाइलेशन जो बाइट कोड फाइल बनेंगी, जो डॉट क्लास फाइल बनेगी, वो बिन फोल्डर के अंदर बनेगी। तो सेपरेट हो जाएगा, आपके सोर्स कोड अलग फोल्डर में रहेंगे, कंपाइल्ड वर्जन अलग फोल्डर में रहेगा। तो कंपाइल्ड वर्जन जब अलग फोल्डर में रहेगा, आप पूरा का पूरा कंपाइल्ड कोड उठा के किसी भी दूसरे सिस्टम पे कॉपी कर सकते हैं, और वहां पर सिर्फ JVM होना चाहिए, वो इसको रन कर सकता है। तो आपको सोर्स कोड देने की जरूरत नहीं है। तो आपका सोर्स कोड और आपका कंपाइल्ड वर्जन जो बाइट कोड है वो डिफरेंट फोल्डर में रहेंगे। जस्ट क्लिक ऑन फिनिश। तो इट इज ए वन टाइम एक्सरसाइज, आई अगेन रिपीट यू, इट इज ए वन टाइम एक्सरसाइज, राइट? तो यहां पर देखिए महेश के नाम से, महेश 01 के नाम से एक फोल्डर बना हुआ आ गया। आप इस पे राइट क्लिक कीजिए, आज डेली आइए अपनी लैब में काम कीजिए, और यहाँ आके आपको क्लास बनानी है, यू हैव टू क्रिएट ए क्लास। फॉर एग्जाम्पल पहली बार हम कोई क्लास बना रहे हैं, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने क्लास का नाम रखा सैंपल, जैसे मैंने अभी बनाया था, राइट?
अभी इसको पब्लिक रहने दीजिए, अभी पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड का कॉन्सेप्ट बताऊंगा। अगर आपको मेन फंक्शन इसी क्लास के अंदर चाहिए, क्योंकि मेन फंक्शन इज मैंडेटरी, विदाउट मेन फंक्शन यू कांट रन जावा ऐप प्रोग्राम, तो आपने इस पर क्लिक कर दिया और यहाँ फिनिश पे क्लिक कर दीजिए, तो ऑटोमेटिकली आपको सोर्स कोड बना हुआ आ जाएगा। यहाँ देखिए, राइट, यू कैन सी हियर, ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये लिखा हुआ आ जाएगा। आपको करना क्या है, लाइक अगर आपको हेलो प्रिंट करना है, जैसे मैंने बताया था सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, तो आईडी यूज करने का फायदा क्या होता है, आईडी यूज करने का फायदा होता है इसमें ऑटोमेटिकली सिंटेक्स चेकिंग होती है। लाइक अभी ये कमांड इनकम्प्लीट है तो रेड कलर में दिखा रहा है, राइट। जैसे ही मैं इसके आगे लिखूंगा प्रिंट एलन, राइट, ये आउटपुट प्रिंट करने के लिए, तो इसमें अगर मैं देखिए कंट्रोल शिफ्ट ये दबा रहा हूं तो मेरे को बता रहा है इसके अंदर कौन कौन से आर्गुमेंट्स आएंगे, तो आर्गुमेंट्स भी सजेस्ट कर देगा इस फंक्शन के अंदर किस टाइप के आर्गुमेंट्स आते हैं। ऑटोमेटिकली ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, क्लोजिंग ब्रैकेट आ जाएगा, ऑटो सिंटेक्स चेकिंग है, ऑटो टेक्स्ट कंप्लीशन है, तो ये सारे फीचर्स हमें यहाँ पर एक ही एडिटर के अंदर मिलते हैं। इवन यहीं पर आप प्रोग्राम कंपाइल करेंगे, यहीं पे प्रोग्राम को आप रन करेंगे। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, राइट। तो इट प्रोवाइड यू ए सिंगल प्लेटफॉर्म टू write your source code, to compile your source code, to run your source code, even you can debug your program here, right। तो यहाँ पर मैंने लिखा my first java program, right, semicolon, right। आप इसको यहाँ सेव कर सकते हैं, देखिए ये सेव यहाँ बना हुआ है, राइट। एंड रन करने के लिए यहाँ पर रन प्रोग्राम बना, रन का बटन बना हुआ है। तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर इसी में विंडो के नीचे आपको यहाँ पर आउटपुट दिखाई दे जाएगा। आई विल शो यू, सी हियर, यहाँ पर नीचे लिखा है माई फर्स्ट जावा प्रोग्राम। आप देख सकते हैं, मैं इसको मैग्नीफाई करके दिखाता हूँ। यू सी हियर, इसको बोलते हैं कंसोल विंडो। तो आपका आउटपुट यहाँ ऐसे आएगा, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको अपनी ये आउटपुट कैसे स्क्रीनशॉट लेना है और कैसे टर्मवर्क की फाइल बनानी है, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसको भी कवर करेंगे। नाउ तो आपने ये बना लिया, नेक्स्ट डे आप आए, ओके, आज आपने इसको बंद कर दिया, आपने क्लोज ऑल किया, आपने आज का काम फिनिश कर दिया, दैट्स इट। नेक्स्ट डे, जस्ट नेक्स्ट डे आप आए, आप दोबारा एक्लिप्स पे क्लिक करेंगे, ये आपका वर्क स्पेस दिखाई देगा। इवन अगर आपने ये चेक बॉक्स क्लिक कर लिया तो ये विंडो आपको दिखाई नहीं देगी, राइट। आपको लॉन्च भी नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। नाउ तो ये वर्क स्पेस आपने CS4K का मैंने यूज किया, ऑटोमेटिकली जो मैंने प्रोजेक्ट फोल्डर बनाया था वो भी दिखाई देगा, मैंने जो प्रोग्राम बनाया था वो भी दिखाई देगा, राइट। नाउ ये वेलकम विंडो, इसको क्लोज कर दो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑलरेडी ये प्रोग्राम, ये महेश 01 का फोल्डर है, इसके अंदर ये SRC फोल्डर है, यहाँ पर आपका ये सैम्पल प्रोग्राम है। तो दोबारा से आइए, यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए, प्रोजेक्ट फोल्डर के ऊपर न्यू में जाइए और क्लास पे क्लिक करके आज नया प्रोग्राम बनाइए क्लास पे। यहाँ क्लास का नाम लिखिए, राइट। यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन फंक्शन लीजिए और फिनिश पे। तो डेली आके आपको ऐसे यहाँ पर क्लासेस क्रिएट करनी, आपकी नई नई क्लासेस यहाँ बनती जाएंगी, राइट। तो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, राइट। तो इसमें अगर आपको कोई डाउट है, इंस्टॉलेशन में कोई प्रॉब्लम आती है, यू कैन टेक्स्ट मी इन माई पर्सनल विंडो, राइट। अदरवाइज डाउट क्लियरिंग सेशन में I will talk about all your doubts, right. I will explain each and every doubt raised by you, right. Thank you students.